6. Myself Kapil Dhama, Assistant Professor, and I will teach you the subject. And this is lecture number 1 of Unit 1. So following topics we were covered in this lecture series. The topics we will cover in this lecture series, students: the brief overview of microcontroller and features, generalized difference between microprocessor and microcontroller. But obvious, when we discuss the microcontroller, we should understand what are the major differences between the microprocessor and microcontroller. Also, we discuss the classification to the microcontroller according to memory devices, that is explanation to embedded controllers and extended memory controllers. Also, we discuss the classification of microcontrollers based on memory architecture and based on instruction set. So these are the following points, students, we will discuss in the this lecture series. So let's start with our first topic, that is brief overview of microcontroller and its block diagram. As you know that in 8085 overview, the microcontroller was designed in 1980s by Intel. So it is developed for embedded system applications. Embedded system means it is used for a small applications. जैसे कि आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि जो आपके माइक्रोवेव ओवन्स हैं या वॉशिंग मशीन्स हैं, ये these are the examples of small microcontroller based applications. So students, there are many applications with 8085 microcontroller. So 8085 microcontroller projects have a great significance in engineering final year projects. The students who are doing their engineering in electrical or mechanical, or even though in any background, and if he is using any automatic concept in their project, then he might or maybe use the 8051 controller to successfully develop a particular application. Okay, students. Now, if we talk about the block diagram, students, in block diagram, as you see, there is a numerous sub-components are connected in between the CPU directly, indirectly, and make the 8051 as a one unit. So this is the yellow color interrupt controller, that is CPU. As you know that CPU is nothing but central processing unit. And bus control, definitely we have different kinds of bus यानी कि डेटा बस, एड्रेस बस, और भी जितनी बसेस हैं जो अपने प्रोग्रामिंग में या अपने एग्जीक्यूशन फैच डिकोड में काम यूज़ होती हैं, वो बस का कंट्रोल यहाँ पर है. एक रोम है, रीड ओनली मेमोरी 4 किलोबाइट की, 128 बाइट का रैम है, टाइमर्स हैं जो काउंटर्स की तरह काम करते हैं, serial ports we have in block diagram, and also we have input output ports for connecting or interfacing with the other peripheral units. So students, this is the generalized block diagram of 8051. Okay, we will discuss the 8051 block diagram in detail in the next classes. This is the just overview ki how 8051 microcontroller looks like, and how the sub components inside the microcontroller are connected to each other directly and indirectly. Now, if we talk about the features, students, so in features we have 8-bit CPU, 4 kilobyte ROM for programming, 128 byte for RAM for variables, and 32 input output lines, 4 ports with 8 each. 4 पोर्ट्स हैं, हर एक के पास 8 पिन हैं, और इसी तरीके से हमारी 32 लाइन्स इनपुट आउटपुट लाइन्स बन जाती हैं. 2 टाइमर्स वी हैव, 1 सीरियल पोर्ट एंड 6 इंटरप्ट्स वी हैव. दिस इज द सम जनरलाइज्ड और फीचर्स वी हैव with our microcontroller. Now comes to the difference between the microprocessor and microcontroller, student. जैसे कि आप देख रहे हैं कि माइक्रो कंट्रोलर जब आप पढ़ रहे हैं तो माइक्रोप्रोसेसर के बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है, और क्यों हम माइक्रो कंट्रोलर की जगह माइक्रोप्रोसेसर यूज़ नहीं कर सकते और माइक्रो कंट्रोलर की जगह माइक्रोप्रोसेसर क्यों नहीं यूज़ कर सकते. तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वी हैव ब्लॉक डायग्राम फॉर बोथ द सिस्टम्स. और इस सिस्टम्स के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि
यहाँ पे एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जहाँ इसमें भी दोनों कॉमन है। एक्यूमुलेटर और वर्किंग रजिस्टर्स यहाँ मौजूद हैं इन माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर में एक्यूमुलेटर क्या है कि जो लास्ट आपका जो एग्जीक्यूशन का जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। वर्किंग रजिस्टर जो होते हैं वो आपके स्टोरिंग जो आपके स्टोरिंग के लिए आपका जो डेटा है उसका इस्तेमाल वो करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर का काम यहाँ माइक्रोप्रोसेसर में देखा होगा आपने। वी हैव क्लॉक सर्किट फॉर सिंक्रोनाइजेशन, इंटरप्ट फॉर एक्सटर्नल पेरिफेरली पेरिफेरल जो हमारे कनेक्टेड है इंटरफेस के द्वारा हमारे माइक्रोप्रोसेसर थे, वो इंटरप्ट सर्किट हमारे पास यहाँ माइक्रोप्रोसेसर में लगा हुआ है। मगर यदि हम इसकी बात करें माइक्रो कंट्रोलर की, तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंटरप्ट सर्किट यहाँ भी है और क्लॉक भी है फॉर सिंक्रोनाइजेशन, बट ऑब्वियस है क्योंकि ऑटोमेटिक काम चल रहा है। स्टैक पॉइंटर भी है, ओके, और प्रोग्राम काउंटर भी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इंटरप्ट सर्किट, क्लॉक, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, ये सभी के सभी चीज़ कॉमन है। मगर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो माइक्रोप्रोसेसर में टाइमर और जो काउंटर है वो थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो जाता है। साथ ही साथ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स यहाँ पे मौजूद नहीं होते जो कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर में देखने को मिलता है। एक्यूमुलेशन रजिस्टर्स हमारे पास यहाँ मौजूद रहते हैं, ना कि दोनों के दोनों क्या है, सेम है। साथ ही हमारे पास यहाँ देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इंटरनल रोम मौजूद रहती है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि हम यहाँ स्मॉल एप्लीकेशंस के बिहाफ पर ही हम सिस्टम को ऑटोमेट करते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर इज यूज्ड फॉर द स्मॉल एप्लीकेशंस और स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। तो दिस इज द डिस्कशन ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं कि इट हैज़ मैनी इंस्ट्रक्शंस टू मूव डेटा बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। मेमोरी और सीपीयू के बीच में यदि आपको डेटा को मूव करवाना है तो ये इट हैज़ मैनी इंस्ट्रक्शंस, ओके, बट इट हैज़ फ्यू इंस्ट्रक्शंस, यानी कि यहाँ तो है फ्यू और यहाँ है मैनी, है ना। तो मैनी इंस्ट्रक्शंस किस में है, माइक्रो प्रोसेसर में, क्योंकि वो लार्ज अगर सिस्टम की बात करें या कॉम्प्लेक्स सिस्टम की बात करें तो वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम के ऑपरेशंस को ऑपरेट करता है, तो जब डेफिनेटली हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं वो ज़्यादा होंगे। अब आप देखेंगे फ्यू बिट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस आर देयर एंड इट हैज़ मैनी बिट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस आर देयर। तो यहाँ एक अपोजिट हो गया कि फ्यू बिट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। लेस नंबर ऑफ पिन्स आर मल्टी फंक्शनल, जबकि यहाँ मोर नंबर ऑफ पिन्स आर मल्टी फंक्शनल, यानी कि आप एक माइक्रो कंट्रोलर से सेवरल डिफरेंट टास्क जो है ऑपरेशंस आप ऑपरेट करवा सकते हो। जबकि माइक्रो प्रोसेसर जो आपका है वो हार्ट है सीपीयू का, तो आपके जो कंप्यूटर में सीपीयू लगा हुआ है वो उसका हार्ट है, तो वो वहाँ एक ही यूनिट की तरह काम करेगा। जबकि आप 8051 की जो इनपुट आउटपुट पिन्स हैं या पेरिफेरल्स हैं, आप वो इंटरफेस के द्वारा अलग अलग ऑपरेशंस को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो दिस इज द डिस्कशन ऑफ डिफरेंस between of microprocessor and microcontroller. Let's discuss some or more points students. तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने डिस्कशन किया अभी कुछ ब्लॉक डायग्राम और उसके इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में माइक्रो प्रोसेसर में। तो यहाँ पे बात आती है कि सिंगल मेमोरी मैप फॉर डेटा एंड कोड फॉर प्रोग्राम। तो सिंगल डेटा मेमोरी मैप का जो यहाँ पे कंसेप्ट है वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इन्वॉल्व रहता है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे सेपरेट मेमोरी मैप फॉर डेटा एंड कोड फॉर प्रोग्राम। तो सेपरेट यहाँ पे जो है डेटा और प्रोग्राम कोड का अलग रहेगा। एक्सेस टाइम फॉर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट आर मोर। तो एक्सेस टाइम जो है वो आपका मेमोरी और इनपुट आउटपुट का मोर है, जबकि लेस एक्सेस टाइम मिलेगा आपको किसके लिए, बिल्ट इन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट की रोम ही आपकी वहाँ पे क्या है, इनपुट आउटपुट इनबिल्ट है। माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम रिक्वायर्स एडिशनल हार्डवेयर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको अगर माइक्रो प्रोसेसर के साथ मल्टीफंक्शनल काम करवाना है तो आप अपने इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को अलग से जोड़ना पड़ेगा पेरिफेरल्स में, तो वो एक एडिशनल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट वहाँ पे जोड़ने की जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो बन जाती है। जबकि यहाँ पे लेस एडिशनल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, तो एडिशनल हार्डवेयर की कम जोड़ेंगे और मल्टी फंक्शनल पिन्स के थ्रू हम उसको सेवरल फंक्शंस को ऑपरेट कराने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो मोर फ्लेक्सिबल इन द डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू, मोर फ्लेक्सिबल इन द डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि लेस फ्लेक्सिबल है देन एडिशनल सिंस द एडिशनल सर्किट विच इज रिसाइड इन द माइक्रोप्रोसेसर फिक्स फॉर ए पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर। जैसे कि बताऊँ मैं आपको कि मोर फ्लेक्सिबल इन द डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आप देखेंगे जब डिफरेंट कॉम्प्लेक्स टास्क को जब आप ऑपरेट करवा रहे होते हैं अपने सीपीयू के द्वारा,
कंप्यूटर के अंदर, तो वो बहुत इजीली तरीके से सेवरल टास्क एक साथ कई बार सेवरल तरीके से अच्छी तरीके से फास्ट एक्सेस की तरह उसको एग्जीक्यूट करता है। जबकि आप देखेंगे कि ये एक लिमिटेड जो है एप्लीकेशंस के तौर पर हमने इसको बनाया होता है। ये एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही हमारा जो 8051 का माइक्रो प्रोसेसर किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर परफॉर्म करेगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ वॉशिंग मशीन के अंदर, तो वॉशिंग मशीन के अंदर यदि मैंने कहा कि उसके अंदर 3 फंक्शन लगे हुए हैं, वॉश, ड्राई और लेट से कि वॉश करेगा, रिंस करेगा और ड्रा करेगा, तो 3 ऑप्शंस उसके अंदर अवेलेबल और स्पेसिफिक उसके अंदर जो है एप्लीकेशंस इन्वॉल्व हैं। तो दिस इज द लेस फ्लेक्सिबल। So large number of instructions with flexible addressing modes are there in microprocessor। और जबकि यहाँ पे क्या है, लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस हैं, तो लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस होंगी तो एड्रेसिंग मोड भी इंस्ट्रक्शन आपके क्या रहेंगे स्टूडेंट्स, लिमिटेड रहेंगे। तो दिस इज अबाउट द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। Now students, if we talk about the microcontroller classification based on the memory devices, तो मेमोरी डिवाइसेस पे अगर हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 कंसेप्ट आते हैं निकल के। एक कंसेप्ट है स्टूडेंट एक्सटेंडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर एंड दूसरा है एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। ये जनरली क्या है, ये मेमोरी डिवाइसेस को बेस्ड से आपको जो है क्लासीफाई कर रहा है। मतलब कि माइक्रो कंट्रोलर को अगर आपने और क्लासीफाई करना है बेस्ड ऑन द मेमोरी डिवाइसेस, तो वो 2 तरीके से हो सकता है, एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर और वो दूसरा होता है एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। तो एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर में कहा गया कि यदि एम्बेडेड सिस्टम हैज माइक्रो कंट्रोलर यूनिट दैट हैज ऑल द फंक्शनल ब्लॉक्स अवेलेबल ऑन ए चिप इज कॉल्ड एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है कि जितने भी नेसेसरी फंक्शनल ब्लॉक्स हैं यदि वो एक यूनिट के अंदर समाहित हैं, यानी वो सब कुछ उसी के अंदर एक यूनिट के अंदर वो सारा काम लग रहा है, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, तो वो आपका क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर है। जबकि इसमें एग्जांपल के तौर पे लिखा गया है कि 8051 हैव प्रोग्राम इन डेटा मेमोरी इनपुट आउटपुट पोर्ट सीरियल कम्युनिकेशन काउंटर एंड टाइमर एंड इंटरप्ट्स ऑन द चिप्स इज एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड कब बनेगा, जब आप यहाँ देखेंगे कि जो प्रोग्राम और डेटा मेमोरी हैं वो इनपुट आउटपुट सीरियल काउंटर्स और जो टाइमर्स और इंटरप्ट्स हैं ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक चिप के ऊपर सारा के सारा क्या करेंगे, सब यूनिट बना के एक यूनिट बना देगी। तो इसी को ही हमने क्या बोला, एक यूनिट को एम्बेडेड मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। अब वो कहता है कि एक्सटर्नल का, इसका मतलब एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ, तो कहता है कि व्हेन एन एम्बेडेड सिस्टम हैज ए माइक्रो कंट्रोलर यूनिट दैट हैज नॉट ऑल द फंक्शनल ब्लॉक, यानी कि वो कहता है कि ऐसा एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर जिसके अंदर कुछ ऐसे एडिशनल जो फंक्शनल यूनिट्स हैं जो आपको उसके अंदर नहीं है, मौजूद हैं, आपको बाहर से क्या करना पड़ रहा है, उनके साथ इंटरफेस करना पड़ रहा है, तो वो बन जाता है एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। जैसे कि 8031 हैज नो प्रोग्राम मेमोरी ऑन द चिप, इट इज एन एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर। जैसे 8031 माइक्रो कंट्रोलर की बात कही गई तो उसमें आप देखेंगे कि प्रोग्राम मेमोरी ऑन द चिप वो उसके अंदर एब्सेंट रहती है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली उसको कनेक्ट करते हैं। तो ये चीज एक ड्रॉबैक हो गया इसका। तो ये एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर में क्या होगा, लिमिटेड जो फंक्शनैलिटी है वो मौजूद रहेंगी, आपको बाहर से कुछ और भी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। जबकि एक्सटर्नल मेमोरी वाले में क्या करोगे, बहुत सारी जो बेसिक्स आपकी जो है नेसेसरी वाली जो चीज़ें हैं वो आपकी सारी इसके अंदर मौजूद रहेंगी। इफ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मेमोरी आर्किटेक्चर, तो स्टूडेंट जैसे यहाँ पे अभी हमने बात करी मेमोरी डिवाइसेस के बिहाफ पर, अगर हमने क्लासिफाई किया माइक्रो कंट्रोलर को, तो अब मैं बात करता हूँ कि यदि मैं माइक्रो कंट्रोलर को मेमोरी आर्किटेक्चर के हिसाब से डिवाइड करूँ तो व्हाट वी हैव, तो इसमें 2 तरीके से निकल के आती हैं स्टूडेंट्स। एक है जी हार्वर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर माइक्रो कंट्रोलर, दूसरा है प्रिंसटन आपका मेमोरी आर्किटेक्चर कंट्रोलर। तो हार्वर्ड जो मेमोरी आर्किटेक्चर माइक्रो कंट्रोलर है, इसका मतलब क्या है या इसका कंसेप्ट क्या है, द पॉइंट व्हेन ए माइक्रो कंट्रोलर हैज ए डिसिमिलर मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ पे आएगा डिसिमिलर, है ना, डिसिमिलर memory address space for the program and data memory, the microcontroller has hardware memory architecture in the processor।
तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि ऐसा माइक्रो कंट्रोलर जिसके अंदर मेमोरी एड्रेस का जो कंसेप्ट है वो डिसिमिलर है फॉर द प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी, तो उसको हमने हार्वर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर का नाम दिया। जबकि बात करें प्रिंसटन मेमोरी आर्किटेक्चर की, तो उसमें आपको देखिएगा कॉमन मेमोरी एड्रेस, कॉमन मेमोरी एड्रेस। तो कॉमन मेमोरी एड्रेस का मतलब क्या है कि फॉर द प्रोग्राम मेमोरी एंड द डेटा मेमोरी, द प्रोग्राम और डेटा मेमोरी के लिए कॉमन मेमोरी एड्रेस है। द माइक्रो कंट्रोलर हैज प्रिंसटन मेमोरी आर्किटेक्चर इन द प्रोसेसर। तो दिस इज द कंसेप्ट, है ना। तो हार्वर्ड के अंदर क्या है कि डिसिमिलर मेमोरी एड्रेस है, जबकि प्रिंसटन में क्या है आपके कॉमन मेमोरी एड्रेस है। तो दिस इज द concept we discussed according to the memory architecture, students. If we talk about the major differences between the Harvard memory architecture microcontroller and Princeton memory architecture microcontroller, तो थोड़ा सा हम इसको डिफरेंस वाइज डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंस लिखे हैं, और डिफरेंस ये है कुछ इस तरीके से कि ये इसको बोलते हैं वॉन न्यूमैन प्रिंसटन आर्किटेक्चर, और दूसरा है हार्वर्ड। तो हार्वर्ड में क्या बताया गया था, डिसिमिलर मेमोरी एड्रेस, और प्रिंसटन में क्या बताया था, कॉमन मेमोरी एड्रेस। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ सीपीयू है, सीपीयू के साथ मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी एक साथ डेटा बाई डायरेक्शनल में है। एड्रेस आपका सिंगल साइड है, यानी सिंगल जो, यानी कि सीपीयू जो है वो आपको एड्रेस बार से सीधा उसका वन साइडेड है ना, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देगा, लेगा नहीं। और डेटा जो है वो सीपीयू से टू एंड फ्रो है। जबकि हार्वर्ड में देखो स्टूडेंट्स आप कि सीपीयू तो है, डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी दोनों में है, मगर इसमें डिफरेंस क्या आ गया, देखो एड्रेस बार इसमें क्या है, वन साइड जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है डाटा मेमोरी प्रोग्राम मेमोरी को, और इधर भी प्रिंसिपल में दे रही है, और डेटा भी आपका बाई डायरेक्शनल है, इधर भी डाटा बाई डायरेक्शनल है। मगर आप ये देखो कि एड्रेस जो बस है ना, वो आपकी दो तरीके से हो सकती है, डेटा मेमोरी की अलग होगी और प्रोग्राम मेमोरी की अलग होगी। इसी तरीके से जो डेटा का भी जो प्रोग्राम बाई डायरेक्शनल होगा सीपीयू के लिए हार्वर्ड में, वो होगा। तो ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये प्रिंसटन से थोड़ा सा अलग खाता है। जैसे कि आपको अगर मैं और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन दूँ कि प्रिंसटन में जो डेटा है वो बाई डायरेक्शनल है, वो कॉमन है, प्रोग्राम मेमोरी भी चलेगा, डेटा मेमोरी चलेगा, और एड्रेस बस भी जो है वो कॉमन और कॉमन चलेगा। जबकि हार्वर्ड में आप देखेंगे कि दोनों के लिए, डाटा मेमोरी के लिए भी अलग है, प्रोग्राम मेमोरी के लिए भी अलग अलग कंसेप्ट दिया हुआ है। तो दिस इज द आर्किटेक्चर ब्लॉक डायग्राम। तो अब वो बात करता है कि अगर हम प्रिंसटन की बात करें तो वो कहता है कि इट यूजेस सिंगल मेमोरी स्पेस फॉर बोथ द इंस्ट्रक्शन डेटा। जैसे मैं बता ही रहा था आपको कि इसमें लिख रखा है कि इट यूजेस सिंगल मेमोरी स्पेस, है ना, फॉर बोथ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, जबकि यहाँ क्या है, सेपरेट है, अलग अलग यूज कर रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू फेच इंस्ट्रक्शन कोड एंड डेटा। अब इसमें हुआ क्या कि यदि हम कॉमन करेंगे तो एक दिक्कत ये आएगी कि नॉट पॉसिबल टू फेच इंस्ट्रक्शंस कोड एंड डेटा, जबकि यहाँ क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस कोड एंड डेटा कैन बी फेच साइमल्टेनियसली। कैसे, यदि मुझे डेटा से काम लेना है तो मैं डेटा से भी संपर्क कर सकता हूँ और प्रोग्राम से भी काम कर सकता हूँ, जो साइमल्टेनियस दोनों काम चलेंगे। जबकि सीपीयू में क्या करना, मुझे वेट करना पड़ेगा जबकि एक पूरी इंस्ट्रक्शन खत्म ना हो जाए। एड्रेस ने एक बार एक इंस्ट्रक्शन दे दी तो ये पूरी तरह के लिए अभी क्या होगा, उस तरह के लिए होल्ड हो गया। जब वो काम खत्म कर देगा तब वो रिलीज होगा, तब वो दूसरा डालेगा। तो इसलिए क्या है, प्रिंसटन में थोड़ा सा ये एक फॉल्ट होता है, या लिमिटेशन कह सकते हो। तो इसलिए कहता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेक्स मोर मशीन साइकिल, है ना। बट ऑब्वियस ही बात है कि जब आप अगली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट कर रहे हो तो ये प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, बिजी हो गया। और ये बिजी तब तक हो गया जब तक कि एक इंस्ट्रक्शन का काम पूरा तरीके से खत्म ना हो गया। तो उससे क्या होगा कि जो इंस्ट्रक्शंस का जो टाइम है, मशीन का साइकिल का टाइम है, वो ज़्यादा लग रहा है, जबकि यहाँ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैज लेस मशीन साइकिल। साइमल्टेनियसली कई सारी ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्वर्ड एंड द प्रिंसटन मेमोरी आर्किटेक्चर माइक्रो कंट्रोलर। अभी और भी दो तीन इसके अंदर पॉइंट्स हैं, आगे चलते डिस्कस करते हैं। अब बात करता है कि ये जो प्रिंसटन वाला है, ये कौन सा आर्किटेक्चर यूज करेगा, सिस्क आर्किटेक्चर, है ना, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। और ये वाला रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ये यूज करता है।
और इंस्ट्रक्शन प्री फैचिंग इज ए मेन फीचर, जबकि इंस्ट्रक्शन पैरेललिज्म इज ए मेन फीचर। पैरेललिज्म का मतलब पैरेलल यानी कि एक से ज़्यादा दो इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली आपकी क्या हो रही है, डिकोड या फैच हो रही हैं। ऑल्सो नोन एज कंट्रोल फ्लो और कंट्रोल ड्रिवन कंप्यूटर्स, है ना, जबकि इसको हम बोलते हैं डेटा फ्लो और डेटा ड्रिवन कंप्यूटर्स। तो ये कौन सा वाला प्रिंसटन वाला कौन सा हो गया, कंट्रोल फ्लो, जबकि ये कौन सा हो गया, डेटा फ्लो और डेटा ड्रिवन, जबकि ये क्या है, कंट्रोल फ्लो एंड कंट्रोल ड्रिवन। आगे जो पॉइंट्स कहता है कि सिंप्लीफाइज द चिप डिजाइन बिकॉज ऑफ सिंगल मेमोरी स्पेस। तो सिंप्लीफाई द चिप डिजाइन, अब देखो जब हमारा डेटा की बसेस और जो सर्किटरी है वो अगर लिमिटेड होगा तो जो हमारा प्रिंसटन का जो चिप साइज है वो भी क्या होगा, सिंगल ही होगा और बहुत सिंपल होगा। जबकि यहाँ थोड़ा सा सर्किट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नेचर का हो जाएगा। तो इसके जो बेसिक आर्किटेक्चर, बेसिक जो एग्जांपल हैं जो कि आपने अपनी माइक्रो प्रोसेसर की क्लासेस में पढ़े हैं स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग बट 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर। जबकि यहाँ जनरल पर्पस माइक्रो कंट्रोलर्स और स्पेशल डीएसपी चिप्स, ये हमारे एग्जांपल्स हैं हार्वर्ड के। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछ दिया करता है। तो आपको प्रिंसटन और हार्वर्ड इंस्ट्रक्शंस में जो आर्किटेक्चर्स हैं वो ब्लॉक डायग्राम सहित आपको प्रोग्राम जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब जैसे कि हमने बात करी अभी तक माइक्रो कंट्रोलर्स की टाइप्स बेस्ड ऑन देयर लेट्स से कि मेमोरी, फिर दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑन देयर आर्किटेक्चर, एंड थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन सेट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ बात करी है इंस्ट्रक्शन सेट की। तो इंस्ट्रक्शन सेट में दो हैं, एक है सिस्क एक है रिस्क। तो सिस्क में क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और वो कौन फॉलो करता है, प्रिंसटन करता है। जबकि रिस्क जो करता है वो कौन सा करता है, रिड्यूस्ड। और सिस्क का जो सिस्क अगर प्रिंसटन यूज करता है तो हमने उसके एग्जांपल कौन कौन सीखे अभी, 8085 8086। जबकि यहाँ अगर रिस्क की बात करें तो यहाँ जनरल पर्पस आपके माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। तो स्टूडेंट्स सिस्क जो है इट अलाउज द प्रोग्रामर टू यूज वन इंस्ट्रक्शंस इन ए प्लेस ऑफ मैनी सिंपलर इंस्ट्रक्शंस। तो प्रोग्रामर को अलाउ करेगा सिर्फ ओनली वन इंस्ट्रक्शन इन प्लेस ऑफ मैनी सिंपल इंस्ट्रक्शंस, है ना। तो क्योंकि डेटा और जो एड्रेस बस है वो हमारे पास सिंगल है, तो वंस द इंस्ट्रक्शन इज सेंट बाय द सीपीयू टू द मेमोरी थ्रू एड्रेस बस टू प्रोग्राम मेमोरी डेटा मेमोरी, तो वो होल्ड हो गया, और जब तब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ तब तक वो नहीं रिलीज होगा फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है। जबकि रिड्यूस में अगर आप बात करें स्टूडेंट्स, तो दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस सेट रिड्यूसेस द डिजाइन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर फॉर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के बिहाफ पर जो है इसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो थोड़े रिड्यूस हो गए, और allows each instructions to operate or any register to use any addressing mode and simultaneous access to program और data। तो कहने मतलब ये है कि ये प्रोग्रामर को अलाउ करेगी कि साइमल्टेनियसली अगर आपको दो इंस्ट्रक्शंस आपको ऑपरेट करवानी है तो ऐसा नहीं कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए वेट करेगा। साइमल्टेनियसली पैरेललिज्म का जो कंसेप्ट है वो हार्वर्ड के अंदर यूज हो जाता है। तो जो जनरल पर्पस हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं वो हार्वर्ड माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। तो ये कहता है कि ये इट अलाउज ईच इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट ऑन एनी रजिस्टर, है ना, तो टू यूज एनी एड्रेसिंग मोड एंड साइमल्टेनियस एक्सेस ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये रिस्क और सिस्क का कंसेप्ट समझ में आएगा रिलेटिंग टू प्रिंसटन एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि इसका डिफरेंस बात करी हमने पिछले वाले डिफरेंसेस में, तो यहाँ भी डिफरेंसेस में कई सारे आ जाते हैं। तो डिफरेंस में देखो आप क्या है, क्या क्या डिफरेंस है इसमें। जैसे सिस्क की बात करें तो ये है आपका प्रिंसटन, ठीक है, प्रिंसटन, और ये कौन सा है, हार्वर्ड, ठीक है। अब हार्वर्ड यूज कर रहा है तो वन और मोर टू साइकिल्स यूज कर सकता है, जबकि यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शंस टेक मल्टीपल साइकिल्स, और ओनली लोड स्टोर इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू एक्सेस मेमोरी। In addition to load and store instruction, memory access is possible with other instruction also. Instruction executed by hardware, instruction executed by the microprogram.
फिक्स्ड फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन जबकि वेरिएबल फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन है, फ्यू एड्रेसिंग मोड, मैनी एड्रेसिंग मोड, फ्यू इंस्ट्रक्शंस, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। तो मोस्ट ऑफ हैव मल्टीपल रजिस्टर बैंक। देखो रजिस्टर बैंक का मतलब हो गया यहाँ पे आपकी मेमोरी लोकेशंस की बात कर रहा है। तो रजिस्टर्स जो है आपके जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं स्टूडेंट्स। तो फ्लिप फ्लॉप आपके जो सीक्वेंशियल सर्किट्स में आपने देखा होगा 1 बिट मेमोरी सेल्स, इस तरीके से हमारी जो बहुत सारी 128 बिट 64 बिट और इतने बिट्स की जो हमारी एक एक बैंक हमारा रजिस्टर जो है कंसेप्ट बताता है। तो ये अगर किसी फोर रजिस्टर बैंक से, इसका मतलब है कि एक रजिस्टर बैंक यानी एक बैंक के अंदर अगर 64 बिट का है तो वो 64 उसके अंदर क्या है फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंस सर्किट लगे हैं जो 64 रजिस्टर्स की मेमोरी कैपेसिटी को बताता है। जबकि यहाँ सिंगल रजिस्टर बैंक की बात कर रहे हैं, यहाँ हाईली पाइपलाइंड है, ये लेस पाइपलाइंड है। कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लिसिटी इन द कंपाइलर, कॉम्प्लिसिटी इन द माइक्रो प्रोग्राम। तो दिस इज द डिफरेंस वी हैव डिस्कस्ड in CISC and RISC architecture based on the classification of the microcontroller। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये जो पहले यूनिट के अंदर जो हमने पहला लेक्चर डिस्कशन किया जिस पे एक दो क्वेश्चन जरूर निकल जाया करते हैं जो, और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करें। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये दिस इज द बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट, बट हमें समझना होगा माइक्रो प्रोसेसर को लेते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए कि वो कैसे डिफ्रेंशिएट करता है माइक्रो प्रोसेसर से, और माइक्रो कंट्रोलर को हम लिमिटेड स्पेसिफिकेशंस के लिए, लिमिटेड एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।